Hello everyone. Today we are going to discuss scope, importance and functions of financial manager. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start. Here we will discuss the scope of financial management. What is the scope of a financial management? Main objective of financial management is to arrange sufficient finances for meeting the short-term and long-term needs. And these funds are procured at minimum cost so that the profitability of the business is maximized. With these things in mind, a financial manager will have to concentrate on the following areas of financial function, or we can say this is a scope of financial management. The first one is financial planning. What is financial planning? Financial planning is the process of estimating the capital required and determining its composition. It is a process of framing financial policies and procedures, investment and administration of funds of an enterprise. फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कितने कैपिटल रिक्वायर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन को और उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे. सो इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं? गैदरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, analyzing and evaluating the financial status of the organization, developing the financial plans, and implementation of the plans. That is called the financial planning. Next is financial forecasting. What is financial forecasting? Here the needs of the organizations are forecasted for the finances कि एक organization की finances की क्या needs है उसको forecast किया जाता है. So यहाँ पर financial manager यह estimate करता है कि organization की long term और short term financial requirements क्या हैं. इस पर्पस के लिए एक फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा. वह प्लान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर किया जाता है. फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए प्लान प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि यह डिटरमाइन किया जाता है कि कितने अमाउंट रिक्वायर्ड है फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए और क्या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं. और इन एस्टिमेशन को जब किया जाता है तो उस समय जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है. बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इनएडिक्वेट फंड्स होंगे तो उसकी डे टू डे रनिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है. इसी तरह से अगर एक्सेस फंड्स होंगे वह भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसर्न का टॉपिक है. बिकॉज अगर आपने ज़्यादा फंड्स को ब्लॉक कर दिया तो उस केस में फर्म की डे टू डे वर्किंग पर इफेक्ट कर सकता है. एक्सेस फंड्स जो हैं उसकी वजह से मैनेजमेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है. Next is sources of funds. After preparing a capital structure, an appropriate source of finance is selected. Organization के द्वारा appropriate sources of finance को select किया जाता है कि हमें funds को कहाँ से raise करना है, कौन कौन से sources हो सकते हैं. अब sources कौन कौन से हो सकते हैं? Share capital, debentures, financial institutions, commercial banks, public deposits. अगर फाइनेंस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है इन दैट केस द फंड्स विल बी रेज्ड फ्रॉम द बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को तब शेयर कैपिटल और डिबेंचर से मनी रेज की जा सकती है. और जब बैंक से मनी रेज की जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज कई बार जो बैंक्स की पॉलिसीज होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न के फेवर में नहीं होती. सो जो स्मॉल कंसर्न है उनको डिफिकल्टी आती है फंड्स को रेज करते समय जो भी उनको सिक्योरिटीज के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है. So the selection of suitable source of funds will influence the profitability of the concern and this selection should be made with a great caution. Next is cost of capital. Cost of capital is the financial cost a company has to pay when raising funds from different sources. जब एक फर्म different sources से money raise करती है तो उसके लिए उसको जो cost bear करनी पड़ती है that is called cost of capital. Like the firm is raising the funds from equity or debt, then it will have to pay a cost. In case of equity, फर्म को क्या पे करना पड़ता है? फर्म को डिविडेंड पे करना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इस तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. और अगर एक फर्म डेट से मनी रेज करती है तो उनको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होती है रिस्क कम हो जाता है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो रिस्क ज्यादा हो जाता है.
तो फर्म को डिसाइड करना है कि किन किन सोर्सेज ऑफ फंड से मनी रेज करनी है, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मेजर रोल प्ले करती है कि हम किन सोर्सेज को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे, व्हाट विल बी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। व्हाइल टेकिंग द डिसीजन अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लेज अ बिग रोल। Next is capital structure. Capital structure refers to the kind and proportion of different securities for raising funds. After deciding about the quantum of funds required, it should be decided which type of security should be raised. यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज से मनी रेज की जाएगी, मीन्स कौन कौन से सोर्सेज होंगे और उसका प्रपोर्शन क्या होगा। लाइक इट मे बी वाइज टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स थ्रू लॉन्ग टर्म डेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स के लिए मनी चाहिए तो वह लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से हमें रेज करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म डेट से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स का गेस्टेशन पीरियड ज्यादा है तब शेयर कैपिटल से भी मनी रेज की जा सकती है। शेयर कैपिटल एक मोस्ट सुटेबल सोर्स रहेगा और कई बार लॉन्ग टर्म सोर्सेज को एम्प्लॉय किया जा सकता है वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए भी। पूरी तरह से नहीं, एक पार्शियल पोर्शन लॉन्ग टर्म सोर्सेज का वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर जो हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो एडिक्वेट नहीं है वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स को भी देखा जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स हाई है तब इस तरह के सोर्सेज लॉन्ग यूजफुल नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज इट विल हैव टू पे अ हाई कॉस्ट। A decision about the kind of securities to be employed and the proportion in which these should be used is an important decision which influences the short-term and long-term financial planning of the enterprise. Next is the capital busting decision. What is capital busting? Capital busting is the process of making investment decision in capital expenditures. It is the expenditure, the benefits of which are expected to be received over a period of time exceeding 1 year. यह वह एक्सपेंडिचर है जिसके बेनिफिट्स एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। So it is an expenditure incurred for acquiring or improving the fixed assets, कि हमें फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको एक्वायर करना है। अब किस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करें, कौन से प्रपोजल और कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करे। सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एक क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अनसाउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए यूजफुल नहीं होगा, एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट डाल सकता है, बिकॉज इट विल लीड टू द लॉसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रक्स क्या है कैपिटल बस्टिंग का, कि हमें फंड्स को अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कौन से प्रपोजल में एलोकेट करना है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर सके। So the crucial factor which influences the capital busting decision is the profitability of the prospective investment, कि जिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। करेक्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टेक्निक्स की। दे आर डिफरेंट कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, लाइक पे बैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। ये डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि किस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड और द नर्व सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जरूरी है। इसी तरह से एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए क्या जरूरी है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं किया जा सकता अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में एडिक्वेट या पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं होगी। वर्किंग कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ फर्म्स कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म और करंट असेट्स सच एज कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज। तो जो हमें डे टू डे रनिंग के लिए को मीट करने के, डे टू डे रनिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उनको, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए मनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर को क्या करना पड़ता है, उसको डिटरमाइन करना है कि कितना क्वांटम हमें इन एसेट्स का चाहिए, कैश रिक्वायर्ड है डे टू डे नीड्स को मीट करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, सैलरीज की, वेजेस की। इसी तरह से रिसीवेबल मैनेजमेंट रिलेटेड है टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल।
फॉर इंक्रीजिंग सेल्स देयर मे बी अ नीड टू गिव मोर क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है तो हमें कई बार क्रेडिट पर भी सेल्स करनी पड़ती है। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बिकॉज अगर इन्वेंट्री इनएडिक्वेट होगी तो डिलेज होंगे प्रोडक्शन में, और अगर हमने ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया तो हमारे जो मनी है इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाएगी, तो दैट विल also harm to the functioning of the organization. Next is the dividend policy. Dividend is the reward for the shareholders for the investments made by them in the shares of the company. Shareholders ने organization में एक business enterprise में जो पैसा लगाया है उसके लिए जो उसको reward मिलता है that is in the form of dividend. तो investors interested होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको maximum rate of return मिले, उनकी investment से ज़्यादा उनको dividend मिले, लेकिन management अपने जितने भी प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उसको सभी प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज उसको अपनी फर्दर फाइनेंसिंग के लिए भी पैसे को बचा कर रखना पड़ता है। सो वहाँ मनी को रिटेन भी करती है प्रॉफिट्स का कुछ पोर्शन। सो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी एम्स है शेयर होल्डर्स के और मैनेजमेंट के, उसमें कैसे उसको कैसे रिकनसाइल करना है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी मीट करना है, साथ में कंपनी को भी हम एक मनी रिटेन करके रखनी है अपनी फर्दर फाइनेंसिंग के लिए। तो फर्म को डिसाइड करना है कि क्या रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड होनी चाहिए जो कि उसको शेयर होल्डर्स को पे करनी है, और कितना पैसा अपने फ्यूचर ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए रिटेन करना है। सो यहाँ पर डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, डिजायर एंड टाइप ऑफ द शेयर होल्डर्स, किस तरह के शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना पड़ता है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपनी की, गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। So dividend policy is an important area of financial management because the interest of the shareholders and the needs of the company are directly related to it. So this is the scope of financial management. Here we will discuss the importance of financial management. What is the importance of financial management? फर्स्ट इज इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, ये ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स प्रिपेयर कर सकता है कि कहाँ से फंड्स को रेज करना है, क्या है ऑर्गेनाइजेशन की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पॉलिसीज और प्लान्स को फ्रेम आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स। फंड्स का एक्विजिशन कैसे करना है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी डिफरेंट फंड्स की, जिसके बेसिस पे हम एक्वायर कर सकते हैं। सो इन टेकिंग द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, इन टेकिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन, helps organization in effectively utilizing and allocating the funds received or acquired. जब एक ऑर्गेनाइजेशन फंड्स को एक्वायर कर लेती है तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और एलोकेशन की, हमें फंड्स की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है जो हमने रेज किए हैं, फिक्स्ड एसेट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, करंट में कितना करना है, ताकि उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, उस पर मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न किया जा सके और फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। एंड असिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन मेकिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजंस। जितने भी क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, लाइक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, ये सभी डिविडेंड जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस हैं ये किसके द्वारा असिस्ट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन डिसीजंस को लेते समय फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प लेता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सिलेक्ट करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए कितनी मनी उसको ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करनी है ताकि एक बिजनेस को स्मूथली रन किया जा सके, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से मनी रेज करनी है, शेयर होल्डर्स को कितने रेट से डिविडेंड देना है, कितना रिटेन करके रखना है, जिस पर फर्म के स्ट्रेटेजिक गोल्स और फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वह डिपेंड करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने फर्म के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स जब एक बिजनेस में फंड्स का सही यूटिलाइजेशन किया जाएगा, एडिक्वेट सोर्सेज से हमने फंड्स रेज किए हैं और उसको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी, increasing the overall value of the firms or organizations.
किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी वैल्यू ऑफ फार्म इंक्रीज हो, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ऑफ फार्म को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बिकॉज जब हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं तो हम कैसे डिसीजन लेते हैं कि हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड सेलेक्ट करें। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वह कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमें कम से कम कॉस्ट बेयर करनी पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो। प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है तो उसको एडिक्वेट रिटर्न्स ओवर अ कांस्टेंट टाइम, कॉन्स्टेंटली उनको लगातार सही अमाउंट में रिटर्न्स मिलते रहते हैं। उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहती है। encourages employees to save money which helps them in personal financial planning। एम्प्लॉयज़ को मनी सेव करने में भी हेल्प करते हैं। बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं वह भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि उनको जो सैलरीज मिली है उसको कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करें। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है कि हमें कहाँ से फंड्स एक्वायर करने, उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर हम फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तब हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे, इसी तरह से वर्किंग कैपिटल में। तो इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वह भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ किया, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ काम करता है, उसी तरह से पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में भी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ काम करता है। तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में वह इन्वेस्ट करने पर उनको कितना रिस्क होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, ताकि वो एक ट्रेड ऑफ मेंटेन कर सके, एक बैलेंस मेंटेन कर सकें और एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट के लिए। Here we will discuss the functions of financial manager or executive. What are the functions of a financial manager? The first is financial forecasting and planning. And this is a major function of financial manager. A manager has to estimate the financial needs of the business. How much money will be required for acquiring the various assets? ये different assets को acquire करने के लिए एक मैनेजर को, बिजनेस फर्म को कितनी मनी रिक्वायर्ड है। अब यह जो अमाउंट डिसाइड की जाती है वह डिसाइड की जाती है by estimating the requirements to be invested in fixed assets and working capital needs। तो फाइनेंशियल मैनेजर को यह डिसाइड करना है कि कितनी मनी रिक्वायर्ड है फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए और कितनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करने के लिए। ही हैज टू प्लान द फंड्स नीडेड इन फ्यूचर। हाउ these funds will be acquired and applied is an important function of a financial manager। Next is acquisition of funds. Sources may be shares, debentures, financial institutions, commercial banks, etc. And the selection of an appropriate source is a delicate task। यहाँ पर जब एक फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फंड्स को एक्वायर कहाँ से करना है। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर सप्लाइंग द फंड्स, लाइक द सोर्सेज में बी शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर को यह डिसाइड करना है कि कौन सा अप्रोप्राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा जिससे हम मनी रेज करेंगे। एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ रॉन्ग choice of source of funds, then it may create difficulties to the organization at the later stages। तो हर एक सोर्स ऑफ फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करने के बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि फंड्स को कहाँ से एक्वायर किया जाए। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। The funds should be used in the best possible way. So the cost of acquiring funds and the returns should be compared. The channels which generate higher returns should be preferred। यहाँ पर फंड्स को एक्वायर करने की कॉस्ट क्या होगी और उसके रिटर्न्स क्या होंगे उसका कंपैरिजन किया जाएगा। जिन चैनल से हमें हाईएस्ट रिटर्न्स मिलता है उनको हम प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते समय। डिफरेंट कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पे बैक मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके बेसिस पे प्रपोजल्स का सिलेक्शन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, और वह तभी किए जा सकते हैं जब उन फंड्स को इफेक्टिवली यूज किया जाएगा और वह फर्म में आइडल नहीं रहेंगे। और जब भी फर्म को रिक्वायरमेंट्स है फर्म के पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए और आइडल फंड्स नहीं होने चाहिए। सो अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू कीप इन माइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड साउंडनेस while investing the funds। Next is helpful in valuation decisions. Here the valuation of several mergers and consolidations for the company.
A number of mergers and consolidations take place in the प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस होते हैं जब एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है या फिर दो फर्म्स इकट्ठी मिलके काम करती हैं। सो ड्यू टू द कंपटीशन इन द बिजनेस वर्ल्ड, डिफरेंट फर्म्स अपनी वैल्यू को इन्हांस करने के लिए मर्जर्स करती हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर को मैनेजमेंट को असिस्ट करना पड़ता है, बिकॉज जब एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर करती है तो दोनों फर्म्स का वैल्यूएशन किया जाता है कि उसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को जब वैल्यूएशन करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजर उनको असिस्ट करता है। इस पर्पस के लिए उनको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, या फिर हम असेट्स को कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं, सो दैट द करेक्ट वैल्यूज कैन बी अराइव्ड एट while taking these decisions. Next is maintain proper liquidity. Every concern is required to maintain some liquidity for meeting day-to-day needs, and cash is the best source for maintaining the liquidity. It is required to purchase raw material, pay workers, meet other expenses. Liquidity क्या है? जो हमें डे टू डे रनिंग के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चाहिए, लाइक वेजेस की पेमेंट करनी है या रेंट की पेमेंट करनी है, या फिर रॉ मटेरियल हमने परचेज किया उसकी पेमेंट करनी है। तो उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर के लिए उसका क्या टास्क है? he has to determine the need for liquid assets and then arrange the liquid assets in such a way that there is no shortage of funds। यहाँ पर उसको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल कराना है, ताकि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्टेज हो अपनी डे टू डे रनिंग के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और ना ही एक्सेस फंड्स हो, बिकॉज अदरवाइज फंड्स को इन्वेस्ट किया जा सकता है और उस पर रिटर्न अर्न किए जा सकते हैं। सो एक सुटेबल लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। So thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.